Myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Department of Civil Engineering, BVD, NIIT Lucknow. Okay. In the previous classes, we have discussed about the most economical channel sections in open channel flow. We have also discussed definition of open channel flow, difference between open channel flow and pipe flow. Okay. Some geometric parameters we have discussed. After that, in last class we have discussed about the a very important topic, Chazy's formula, Chazy's equation. That is Chazy equation which we use for in the uniform flow for calculating the velocity of the flow at any sections. There we find out the some relations like a hydraulic radius r equal to m upon a upon p, okay, and others. So, now we continue the most economical channel sections from we start the rectangular, triangular and trapezoidals. We have discussed in the previous classes these some cross section for the most economical channel section. Okay. In that series we have now reached at the circular channel section. Somewhere whenever we designing canals, we find out the cross section required circular cross channel section. Okay. So, for the channel section, circular channel section, what is the parameters or some definitions, some parameters which we required for the most economical channel section. We know very well what is mean by the most economical channel sections. Channel section means we have discussed designing the channels, that is for the canal, rectangular, triangular, either any shape. Most economical means there are the minimum perimeters and the cost of the project or the canal is also minimum, then we can say it is the most economical channel section. So, for the minimum perimeters we find out the some criterias here we will discuss in this class. Okay. So, we start most economical channel section. हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन आपका सब्जेक्ट है. ओके. सब्जेक्ट कोड जो आपका है वो KC 403 है. लेक्चर नंबर 6 आपने देखा कि डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल फ्लो जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें चेजिस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. चेजिस इक्वेशन का डेरिवेशन प्रीवियस क्लास में किया था, लास्ट क्लास में आप वहाँ से देख सकते हो. ओके. उसके बाद मैनिंग्स के फार्मूला भी लिखा था, मैनिंग्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं कि चेजी की इक्वेशन क्या थी. तो चेजी की इक्वेशन वी वेलोसिटी के लिए जो आपकी थी, ओके, ओके. सो चेजी के लिए आपने वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट की थी v अंडर रूट आर एस. ओके. एंड मैनिंग्स के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन बताई थी आपको, फार्मूला जो बताया था 1 अपान एन r की पावर 2/3 और s की पावर 1/2. गॉट इट. तो ये दो इक्वेशंस आपको ड्राइव की थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में, और इन दोनों के रिलेशन से मैनिंग्स और इनका चेजी की जो कांस्टेंट है इसका रिलेशन भी फाइंड आउट किया था. ओके. तो जो c और n का जो आया था रिलेशन वो 1/n r की पावर 1/6 ये इनका आया था. ठीक. तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद में डिस्चार्ज हमें ओपन चैनल फ्लो में चाहिए तो Q इक्वल टू हमें पता है, वी नो द इक्वेशन Q इक्वल टू AV. ओके. वाई फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड देन फाइंड आउट द वेलोसिटी एट एनी क्रॉस सेक्शन इन द ओपन चैनल फ्लो. We use the continuity equation Q equal to AV, and in this equation we put these values. For find out the velocities we use Chazy equations, Manning equations and the Chazy's constant C and N also derived here the relation between the Chazy's and Manning constant. In the previous class we have also discussed the Weygins formula and that is given by the constants जो terms use किया था उनका Weygins का जो था वो K से डिनोट किए थे और उसकी different values for the different type of materials we use to make a construct a channels के लिए होता है. ओके. इसके बाद में आपका कटर्स फार्मूला है, इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको भी पहले, देन फिर हम लोग आते हैं उस पर सर्कुलर चैनल सेक्शन पे.
चेजी फार्मूला कैन ऑल्सो बी यूज विद द कटर्स फार्मूला। ये भी बताया गया कि चेजी का जो था वो कटर्स के साथ भी कैसे रिलेशन रखता है, तो उसका एक ड्राइव्ड फार्मूला ये है, इसको डायरेक्ट याद करने की ज़रूरत है और इसका डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो चेजी का सी जो कांस्टेंट है आपको पता है सभी लोगों को, सी चेजी कांस्टेंट है, उन्होंने दिया था। ऐसे वेजिन्स के साथ में एक रिलेशन बनाया था, कटर्स के साथ जो रिलेशन है वो सी इक्वल टू 23 प्लस 0.00155 प्लस 1/n डिवाइड बाई 1 प्लस ब्रैकेट 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाई आई n अपॉन अंडर रूट m। ओके, सो यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट है उसमें याद रखना है सी चेजी कांस्टेंट है, जो इसमें ये n दिया गया है। ओके, तो n क्या है हमारा, कटर्स कांस्टेंट है। ओके, कटर्स ने भी काफ़ी स्टडी की थी ओपन चैनल फ्लो में। ओके, तो उन्होंने भी अपना एक रिलेशन दिया था वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, डिस्चार्ज जो भी हमारा ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज था उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो कटर्स की जो इक्वेशन जो है वो आपको कटर्स कांस्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको पता चल गया तो आप सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और सी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो हम चेजी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हमको सारे फार्मूले याद करने की नहीं है, अगर चेजी इक्वेशन याद है और ये कांस्टेंट के आपस में रिलेशन बस याद कर लीजिए। ओके, तो एन कटर्स कांस्टेंट है, एम इज द हाइड्रोलिक रेडियस, आई इज द स्लोप ऑफ द बेड दिया गया है। ओके, तो इस फार्मूले को याद कर लेना है, बस सिंपल सा इतना ही करना है आपको, इसको याद करना है। ओके, सो चेजी सी इक्वल टू कटर्स फार्मूला हो गया, इसको सी फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे कटर्स कांस्टेंट की एंड हाइड्रोलिक रेडियस एम एंड द स्लोप बेड एन। ओके, वैल्यू ऑफ एन इन द मैनिंग्स एंड कटर्स फार्मूला। तो देखिए स्मॉल एन से हम जो मैनिंग्स इक्वेशन यूज कर रहे थे या मैनिंग्स या तो कटर्स, अब आप चाहे कटर्स का रिलेशन जो था वो मैनिंग्स के साथ भी होगा, चेजी के साथ, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो कटर्स का जो कैपिटल एन है तो उसमें एंड कटर्स फार्मूला में, तो ये जो कटर्स की इक्वेशन है ये भी डिफरेंट है। हमने वहाँ पे देखा था कि जो वेजिन्स इक्वेशन में के कांस्टेंट था उनकी वैल्यू 0.01 से लेकर 2.3 तक गई थी, टोटल रेंज जो थी। ओके, उस रेंज के ही हिसाब से हम लोगों को वैल्यूज़ कंसीडर करनी है, बट हेयर वी नो कि यहाँ पर हमारी जो एन दिया गया है कैपिटल एन जो कि कटर्स कांस्टेंट है, तो वो भी सरफेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। तो इन्होंने जो स्टडी की थी फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स जो यूज कर रहे थे कंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि हमारे इस कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग रहेगी। जैसा कि टेबल में दिया है, स्मूथ सीमेंट प्लास्टर एंड प्लान वुड का अगर आपने बनाया है तो उसकी वैल्यू 0.010 होगी, वेरी स्मूथ कंक्रीट एंड प्लान टिम्बर्स अगर है तो 0.011 होगी, स्मूथ कंक्रीट के लिए आपकी 0.12 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से फॉर डिफरेंट सरफेस जो चैनल्स की हैं उसके लिए कटर्स ने अलग अलग अपने कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके दी है। डायरेक्ट यही वैल्यू यूज करनी है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें ये वैल्यूज़ आपको गिवन रहेंगी। ओके, तो जो हम चैनल सेक्शन की बात कर रहे थे, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शंस की बात कर रहे हैं, उन इकोनॉमिकल चैनल सेक्शंस में क्या है हमारा को जो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो डिस्चार्ज फ्लो होगा, उस डिस्चार्ज फ्लो हो रहा होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन ड्राइव किए हैं। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने कई फार्मूले देखे हैं यहाँ पर, तो उसी में अब हम जो रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और ट्रापेजॉइडल डिस्कस कर चुके हैं, तो अब सर्कुलर डिस्कस करते हैं। ओके, सर्कुलर चैनल सेक्शन, जैसा कि आपको यहाँ पे गिवन है कि एक सर्कुलर चैनल सेक्शन दिया गया है। अब आप ध्यान से देखिए कि सर्कुलर चैनल सेक्शन मतलब पाइप में फ्लो हो रहा है, तो क्या उसको हम ओपन चैनल फ्लो बोलेंगे? ओके, पाइप में जब फ्लो होता है, अगर फुली फ्लो हो रहा हो, जैसे कि अगर ये पाइप दिया गया है और इसका क्रॉस सेक्शन की बात करें अगर, तो यहाँ पर मैंने बनाया और इसमें अगर फुल कंप्लीटली फ्लो हो रहा है, ओके, तो ये तो पाइप फ्लो में आ गया, ओपन चैनल फ्लो में नहीं रहेगा। ओपन चैनल फ्लो तभी होगा जब हमारा उसमें एक फ्री सरफेस मिले, मतलब जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा किसी भी चैनल में अगर फ्री सरफेस मिल गई, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो हम उसको ओपन चैनल फ्लो बोलेंगे। तो हमको ये कंडीशन देखनी है कि अगर सर्कुलर भी हमारा क्रॉस सेक्शन है तो उसमें कंप्लीटली फुली फ्लो तो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ पर स्पेस खाली रहेगा ताकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक फ्री सरफेस मिल सके। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम लिया गया है कि एक सर्कुलर ये चैनल सेक्शन आपने कंसीडर किया है, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये यहाँ तक ही वाटर फ्लो कर रहा है इतने में। ओके, ये वाटर फ्लो कर रहा है जो कि A to B पॉइंट हमने बना दिया है। ठीक,
अब आप अगर मैं इसको बात करूं इसके सेंटर से, तो सेंटर से इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को बोथ पॉइंट्स हमने ऐड कर दिए, तो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की रेडियस जो है वो आर है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, ना कि यहाँ पर हाइड्रोलिक रेडियस आर इक्वल टू ए अपान पी कंसिडर कर लो। ओके, ये रेडियस यहाँ पर इसकी दी गई चैनल सेक्शन की आर। जितनी डेप्थ में वाटर फ्लो कर रहा है या कोई भी फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसीडर कर लिया है स्मॉल डी। ओके, इस चैनल सेक्शन का जो डायमीटर होगा उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं कैपिटल डी। ओके, तो स्मॉल डी हो सकता है कि ये जो फ्लो है वो आपका कहीं यहां तक भी फ्लो हो रहा हो। देखिए मैं बना रहा हूं एक। ओके, इस क्रॉस सेक्शन में आपका वाटर जो फ्लो रहा वो इतना ही है, लेकिन अगर मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए यहाँ तक वाटर फ्लो हो रहा होता इतना, ओके, और इसका सेंटर यहाँ पर होगा, तो आप क्या करेंगे, तब भी आप ऐसे ही ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ये वाला एंगल कितना है, ये 2 थीटा एज्यूम करते, इसको थीटा भी एज्यूम कर सकते हो आप। ओके, लेकिन 2 थीटा हम इसलिए एज्यूम करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन के लिए। तो ये ध्यान रखना है, कुछ बुक्स में आपको थीटा एज्यूम करके सारे फार्मूले ड्राइव किए गए होंगे और किस में 2 थीटा, तो आपको ये बिल्कुल स्पेसिफाई होना है कि हम कौन सा फार्मूला याद कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत फार्मूला याद कर लें और फिर वहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फार्मूला होगा तो ड्राइव होकर आएगा तो थीटा भी चेंज होगा, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो वो आप समझ लीजिए कि 2 थीटा कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमारा अगर इतना वाटर फ्लो हो रहा होगा तो अब चाहिए क्या, पूरी कैलकुलेशन में ओपन चैनल फ्लो में जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, चाहे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन हो, तो उसमें भी अगर हाइड्रोलिक मीन रेडियस दी गई है या डिस्चार्ज हमारा मैक्सिमम हो जाए कम रेडियस पे रहे, ओके, या पेरीमीटर उसका मिनिमम रहे, यही बात करनी है। तो इसी के लिए फॉर दैट अगर कोई भी चैनल सेक्शन है वहाँ पे अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, देन वहाँ पे हमको ओपन चैनल फ्लो के लिए उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होनी चाहिए एंड पेरीमीटर पता होना चाहिए। ओके, 2 चीज़ें अगर हमने कैलकुलेट कर ली देन हम अदर पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लेंगे आसानी के साथ। तो यहाँ पर अगर सर्कुलर चैनल सेक्शन है, सर्कुलर चैनल सेक्शन में चाहे वाटर आपका इस पॉइंट तक फ्लो हो रहा हो चाहे आपके सेंटर से नीचे हो, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक फ्लो हो रहा है। ओके, अगर यही चीज़ यहाँ तक होती तो इतनी क्रॉस सेक्शन एरिया आपको फाइंड करनी होती। यहाँ पर कितनी क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करनी है, सिर्फ इतनी। ओके, और ये पेरीमीटर आपको चाहिए क्योंकि इसी के कॉन्टेक्ट में, सॉलिड के कॉन्टेक्ट में है। ठीक, बस एरिया और पेरीमीटर। अब आप समझिए कि जो ओपन चैनल फ्लो में है, बेसिक ज्योमेट्री आपने जो सर्कल पढ़ा होगा क्लास 5th 7th में, 6th 7th में, वहाँ पर जो पढ़ेंगे वही सिंपल से लगाने हैं कि अगर कोई सेगमेंट दिया है उसकी एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सेक्टर की एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ओके, बस सिंपल से वही फार्मूले यूज करने हैं और आप एरिया इसकी फाइंड कर सकते हो, पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हो क्योंकि ये सरकमफेरेंस ही तो चाहिए यहाँ से ए टू बी। ओके, आर्क जो आपकी है उतना ही चाहिए। तो ये चीज़ें हमको पता करनी। तो जैसे फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका ए अपान पी थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें और उसको इक्वल टू 0 कर दें, तो यहाँ से हमको मैक्सिमम वेलोसिटी का एक डेरिवेशन मिल सकता है, डायरेक्ट फार्मूला मिल सकता है। ओके, थीटा के रिस्पेक्ट में अंडर रूट ए क्यू अपान पी को अगर डिफ्रेंशिएट करें 0 के इक्वल रखें, तो यहाँ से डिस्चार्ज हमको कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है। तो ये 2 रिलेशन हमको यूज करने हैं और फाइंड आउट करनी है चीज़ों। तो चलिए यहाँ पर पहले आपको इसका एरिया फाइंड आउट कर लें। जैसा कि एरिया जब अगर उस सर्कल के निकालोगे तो आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपान 2 आया। अब ये कैसे आया ये ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ पे बनाते हैं कि हमारा जो चैनल सेक्शन था मान लीजिए इस पॉइंट तक है और यहाँ तक वाटर आपका फ्लो हो रहा है। ठीक, यहाँ से आपने कंसीडर कर ली रेडियस आर, यहाँ पर ये आर रेडियस और ये वाला एंगल 2 थीटा है। गॉट इट? तो ये 2 थीटा है। अब अगर हम बात करें इस सेक्टर की टोटल एरिया क्या आ जाएगी, ये ए पॉइंट ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, तो सेक्टर ये ओ सेंटर हो गया। तो अब आपसे मैं बात करूं सेक्टर ए ओ वी, ओके, इसकी पूरी एरिया करें तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर। ओके, अब ये चीज़ आ गई तो ये एरिया हमने निकाल ली। अब इस ट्रायंगल की एरिया जो होगी वो अगर माइनस कर दे तो इस सेगमेंट की एरिया हमें पता चल जाएगी। तो इस ट्रायंगल की एरिया कैसे फाइंड करोगे, ये ट्रायंगल यहाँ पर बनाते हैं। देखिए ऐसे ध्यान रखिए कि ए आर है और ये वाला जो एंगल है वो 2 थीटा दिया गया है। ठीक,
तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे आप डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक थीटा डिग्री इधर हो जाएगा, थीटा इधर हो जाएगा। ठीक, पता चल गया। अब आपको यहाँ से ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी, किसी भी तरीके से ये वाली हाइट पता हो जाए तो आपको इस ट्रायंगल की एक एरिया पता चल जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, तो अब क्या होगा, ए जो आर है तो इस पर क्या आएगा आपका आर कॉस थीटा, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आर साइन थीटा। ठीक, मालूम हो गई। अब हम क्या करें, इस वाले ट्रायंगल की एरिया अगर पूरे फाइंड करें तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर साइन थीटा, ये भी होगा। तो हमारा ये टोटल डिस्टेंस हो गई इस ए से बी तक की 2r साइन थीटा। ओके, ये ए बी की डिस्टेंस हो गई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये हम कोई डी पॉइंट मान लें और ये ओ तो था ही, तो ओ डी डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, ओ डी आपकी हो गई आर कॉस थीटा। यूज कर देंगे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला है तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस का सिंपल सा फार्मूला, तो आर कॉस थीटा इंटू 2r साइन थीटा। ओके, दिख रहा है 2r साइन थीटा। तो अगर यहाँ से अब देखेंगे ये एरिया का फार्मूला है किसका, इस ट्रायंगल का, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपका आ जाएगा एरिया उस ट्रायंगल की, आपका आ जाएगा 1/2 r स्क्वायर 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब ये फार्मूला आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा होता है। दिस मीन्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपकी आ गई है, इस ट्रायंगल की आ गई आपकी 1/2 r स्क्वायर साइन 2 थीटा। ओके, साइन 2 थीटा आ गई, समझ गए। अब आपकी ये 1/2 r स्क्वायर साइन 2 थीटा को माइनस कर देना है जो हमने टोटल इस सेक्टर की एरिया निकाली थी यहाँ पर, तो वो हमारी एरिया दी गई। अगर पाई/r स्क्वायर लिखोगे तो वो हमारा रहेगा 360 है, तो पाई से अगर काटेंगे तो 2 ये आ जाएगा। तो वहाँ पे आ गया θ/2 माइनस θ/2 r स्क्वायर माइनस ये 1/2 r साइन 2 थीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर r कॉमन ले लोगे आप, ये वाली चीज़ पाई 180, ओके, इसको सॉरी 180 होता है, तो ये यहाँ पर अगर ले लोगे तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला ये आ जाएगा, समझ गए। तो आपका सिंपल सा जो ये ज्योमेट्री थी ये आसान है, उसको मैंने, जिसको अगर याद है डायरेक्ट फार्मूला तो वो डायरेक्ट लिख सकता है, तो एक सिंपल सा मैंने ड्राइव करके बता दिया है। जो भी चीज़ है आप देख लीजिए एक बार इसको। ओके, तो आपका ये फार्मूला कैसे आया हमने देख लिया कि जो सर्कुलर चैनल सेक्शन है वो किसी भी तरीका का बना हो, आपका देखना है सेंटर से कहाँ तक वाटर फ्लो कर रहा है। ओके, और इसको 2 थीटा कंसीडर कर लीजिए, तो एरिया आ गई आपकी आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 θ/2। ओके, कैसे ड्राइव हुई है ये आपको बता दिए, या सेगमेंट की आप डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये पेरीमीटर, ये वाली डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो पेरीमीटर आपको दिया गया है 2r थीटा। ओके, ये पेरीमीटर का फार्मूला दिया गया है, क्योंकि आपको पता है टोटल सर्कमफेरेंस क्या होती है आपकी 2 πr। ओके, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2 थीटा, ओके, डिवाइड बाय 360, तो वहाँ से फिर आप 2 πr और थीटा वहाँ से पाई से वैल्यू रखोगे तो 2 पाई हो जाएगी, वो कैंसिल, तो 2r थीटा आ जाएगी। ओके, ये सिंपल ज्योमेट्री आपकी है। अब आप देखिए हमारा जो ओपन चैनल फ्लो में इसका क्या यूज है वो चीज़ समझिए। एरिया कैलकुलेट कर ली, पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिए, कोई भी चैनल सेक्शन जब भी मिल जाए आपको सिर्फ जितना फ्लो हो रहा हो वाटर का, कोई भी फ्लूइड जितना फ्लो हो रहा होगा, वी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दैट फ्लो एट एनी क्रॉस सेक्शन, ओके, इन अ चैनल। तो अब यहाँ पर हमको मालूम है कि वेन एवर वी कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर देन वी गो फॉर द कैलकुलेटिंग हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक मीन रेडियस आर जो होती है वो उसी को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आर दिया हुआ है तो इसलिए एम से भी डिनोट कर सकते हैं, तो एम सबसे पहले कैलकुलेट करोगे, दैट इज द रेशियो ऑफ द एरिया of channel cross section and weighted perimeter. So, A/P, we put the value of A/P and we know that A and P, here we putting the value of area and the perimeters, then we calculate and we solve, simplify, then we get r/2 theta, 1r cancel, so r/2 theta, theta minus sin 2 θ/2, ओके, एक इक्वेशन बन गई, ये हमारा आ गया हाइड्रोलिक मीन रेडियस। अब मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए हमको पता है क्या करना है, इसी को dm, ये जो हमने आया है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है।
तो डिफ्रेंसिएशन आपको पता होगा। ओके चलो तो डिफ्रेंसिएशन इसका करते हैं। ओके तो अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे किसका, हाइड्रोलिक मीन रेडियस का, इसका किसके रिस्पेक्ट में, थीटा, तो आपको रिस्पेक्ट पता होना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको अगर जीरो के इक्वल रखेंगे, देखिए डी एम अपान डी थीटा इक्वल टू, अब ये वाला है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो ताकि सिंपल हो जाएगा आपका डी अपान डी थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, आर वाई 2 बचा कांस्टेंट है, माइनस साइन 2 थीटा अपान 4 थीटा। ओके अब यहाँ पर आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा अपान थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करो आप तो क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा का देखो डिवाइड वाला रूल लगाइए, तो इसमें अगर साइन 2 थीटा और थीटा का करोगे तो आपको यू अपान बी का वो वाला लगाइए डिफ्रेंशिएशन का। ओके अब ये जो मिलेगा कॉस 2 थीटा अपान 2 इंटू 2। ओके फिर प्रोडक्ट रूल लगा रहे, फिर इन्वर्स का जब लगाओगे 2 थीटा का 2 थीटा आ गया 4 नीचे रहेगा। अब ये 1 अपान थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा ऊपर जाएगा तो 1 अपान थीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब ये थीटा इधर जीरो के अगर रखेंगे तो ये जीरो में चला जाएगा, तो कॉस थ्रू थीटा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हमको देखना है कि उस थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो आप याद रखिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डी एम बाई डी थीटा रखोगे तो थीटा जो कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू, तो वो आपकी आ रही होगी इतने एंगल पे 128 डिग्री 45 मिनट्स पे। अब ये आप याद रखिए फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डी एम अपॉन डी थीटा जीरो होता है, थीटा की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो 128 डिग्री, जो 2 थीटा एज्यूम किए थे वहाँ पे अगर थीटा की बात करें तो 128 डिग्री 45 पर मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलेगी। ओके और जो डेप्थ आपने कंसीडर की थी सर्कुलर चैनल सेक्शन में, ये ओके ये आपकी जो रिलेशन होना चाहिए डायमीटर ऑफ सर्कुलर चैनल सेक्शन के लिए, आप सब याद रखिएगा d इक्वल टू 0.81 d। ओके इतना आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल ये याद होनी चाहिए। ओके ठीक, बस अब ये चीज़ें हमें पता है तो बस तुरंत आइए आप यहाँ पर Q इक्वल टू ए सी अंडर रूट एम आई, ये फार्मूला देखा आप पढ़ चुके हैं, चीज़ इक्वेशन ड्राइव की थी, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अपान पी आ गया, यहाँ पर सी ये अंदर ले आया इसको तो ये Q अपान पी आ गया ये वाला। ओके आई सी एंड आई आर द कांस्टेंट। तो अब हमारा बचा क्या, अंडर रूट इसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ये 154 डिग्री और d 0.95 d ये वहाँ से मिल रहा था। तो ये हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए जब है तो हमारा थीटा इतना आएगा और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए वो थीटा रहेगा। ओके तो ये चीज़ें जो थी आपकी अभी तक, अब आप लोग इसको समझिएगा सभी चैनल सेक्शंस के लिए कि कितने एंगल पे रहती है मैक्सिमम वेलोसिटी, 128 डिग्री पर मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 154 डिग्री आती है। जो डायमीटर ऑफ सर्कुलर चैनल सेक्शंस होता है उसका डेप्थ के साथ जो रिलेशन है वो d इक्वल टू 0.81 d है कैपिटल D, और ये d स्मॉल d इक्वल टू 0.95 d है। ओके मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अब टोटल आपका मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन से जो रिलेशन है वो ख़त्म हो चुका है। अभी तक हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिए सभी चैनल सेक्शंस किए, उसका एक न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस करना बताना चाह रहे हैं आपको। ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ट्रिपोजॉइडल चैनल है साइड स्लोप ऑफ 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल एंड द स्लोप ऑफ द बेड इज 1 in 1500। ओके आपको पता है कि जो स्लोप ऑफ बेड दिया है एस की वैल्यू या आई की वैल्यू। द एरिया ऑफ द सेक्शन इज 40 मीटर स्क्वायर इज गिवन हेयर एंड द फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सेक्शन इफ इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। तो डायमेंशन आपको फाइंड करनी है, मतलब डेप्थ और विड्थ यही फाइंड करनी होती है फॉर किसके लिए, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए। डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन इफ सी इज गिवन टू 50, मीन्स सी का मतलब Kg कांस्टेंट, तो सी की वैल्यू आपको 50 दी गई है, यहाँ पे देखो हमेशा न्यूमेरिकल में ऐसे दी रहेगी। और आपको क्या निकालना, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला है। तो आपने चेज इक्वेशन फाइंड की है, वहाँ पे v इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस जो होता है, तो आपको पता है वहाँ से हम उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, q इक्वल टू ए सी अंडर रूट एम आई। ओके तो ये एम आई यूज करोगे, इससे डिस्चार्ज आ जाएगा। और क्या कैलकुलेट करना है हमको,
डायमेंशंस, तो इसकी विड्थ और डेप्थ फाइंड करनी है। ओके इतनी चीज़ कैलकुलेट करनी। तो कोई भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है हमको और उसमें कौन कौन से फार्मूले यूज हो सकते हैं। फिर जब फार्मूले पता चल जाएंगे तो आप देखिए कि उस फार्मूले में जो भी हमें पैरामीटर्स की वैल्यू पुट करनी है वो पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, वो चीज़ पता चल जाए तो तुरंत सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप गिवन, फिर उसके बाद आप पहले गिवन फाइंड कीजिए। सबसे पहले गिवन में लिखिए, यहाँ पे साइड स्लोप दिया गया है आपका कितना दिया गया है 1 हॉरिजेंटल 2 दिया गया है, तो हम ये साइड स्लोप यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये वाली चीज़ जो इसका ये दिया गया है। ओके साइड स्लोप तो 1/n दिया गया, और बेड स्लोप जो दिया गया होगा चैनल सेक्शन तो ऐसे बना होगा अगर साइड से देखोगे तो ये बेड स्लोप दिया गया है आपका I 1/1500। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसकी दी गई है वो आपकी एरिया दी गई है 40 मीटर स्क्वायर, और चेजी कांस्टेंट C भी दिया गया है। ओके फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन यूजिंग द इक्वेशंस जो हमने आपको बता रहे हैं कि क्या इक्वेशन यूज करनी है हमको। यहाँ पर ये देखिए आपने b + 2n/d2 = अब यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो d√n² + 1, अगर इसको सॉल्व करें तो ये भी इक्वेशन यूज हो सकती है। तो ये डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पर रखी है आपकी। ओके ये फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूले से b और आ जाएगी ये। ओके ये d के साथ रिलेशन आ गया। ये एरिया ऑफ ट्रापेजॉइडल एरिया, ये फार्मूला आप यूज कीजिए, एरिया का यूज करेंगे तो बी डी का यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा ये वाला। ओके ठीक, तो ए 40 मीटर स्क्वायर, वहाँ पे हम एरिया में गिवन है, पुट कर दीजिए 1.736 डी स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ से डेप्थ आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशंस में तो आपको विड्थ मिल जाएगी। ओके उसके बाद फॉर डिस्चार्ज जो कैलकुलेट करना है फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर m/d/2 ये रिलेशन हमने फाइंड किया था ट्रापेजॉइडल चैनल सेक्शन के लिए, क्या होता है डेप्थ बाई 2 से होता है। ओके तो डेप्थ कैलकुलेट कर चुके हो आप, ऊपर कहाँ की है ये वाली डेप्थ वैल्यू रख दिए तो हमारा आंसर आ गया ये चीज़। डिस्चार्ज के लिए आपको ये फार्मूला बताए हैं, कहाँ से आया, चेजी इक्वेशन से आया है। चेजी का जो फार्मूला दिया गया था वही यहाँ पर दिया है Q = AC√mi, वैल्यू सारी पुट कर देंगे और ये फार्मूला इससे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल ये न्यूमेरिकल्स रहेंगे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हैं, इसमें कुछ कैलकुलेट ज़्यादा नहीं करना है, चाहे जो चैनल सेक्शन, बस आपको एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद चेजी इक्वेशन जो ड्राइव की थी पिछले लेक्चर्स में, उस चेजी इक्वेशन का यूज कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ओके क्लास, चलिए थैंक यू।